Dear students, good morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from KVCRPF Mokamaghat. Today in this morning, we will discuss a new chapter. We will introduce a new chapter that's named here you can see seeds and seeds. I hope and I think also that you already know about many type of seeds and you are very familiar to those seeds because in our day-to-day life seeds as food grains as pulses we can use the seeds and we can grow plants from seed. So all these things we will discuss about it in this class and further classes. In this class only today we will introduce the topic seeds and seeds. तो आज सुबह के जो ब्रेकफास्ट था हो सकता है उसमें भी कुछ चना मटर की सब्ज़ी और या फिर कुछ दाल वगैरह जो भी है जो कि सीड ही है। तो सीड के बारे में पिछले प्रीवियस क्लासेस में आप बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे कि क्या क्या सीड्स और सर और मैडम आपको घर से तरह तरह के दानादार सीड्स लाने के लिए बोले होंगे और आप उसको क्लासीफाई भी किए होंगे, आप उसको अलग अलग करके रखे होंगे। तो देयर आर मेनी एक्टिविटी रिगार्डिंग सीड्स। आई होप आई थिंक you already done it and here in this class in class 5 we will know about how seeds grow and how it turn into a plant, how it happens. All this regarding all these things we will discuss in this class and in this chapter in further classes. So let's start. Here you can see at first a passage and here a picture also. In this picture you can see a bowl and the bowl is full of some seeds and the boy is shocked by seeing it. So let's start and what it happening. Let's start. Gopal was waiting for his mouse's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Just then, his father called out, Gopal, before you sleep, remember to show 2 small bowls, katoris of chana gram. इसको हम ग्राम भी बोलते हैं, हम नॉर्मली चाना बोलते हैं. She was going to his bua's house and would return only in the morning. As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? So he soaked another 2 bowls of chana. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. How much did you soak? Asked his mother. How did that happen? Wondered Gopal. You soaked too much. Anyway, it is good. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. I can send this to your auntie. The doctor has told her to eat sprouts. Mother said she tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. तो क्या हुआ था? इस पैसेज का अगर जिस्ट निकाले तो यही हुआ था कि चना भिगाने के लिए बोला गया था। तो सोचे थे बहुत ही कम भिगा रहे हैं, लेकिन सुबह जब देखे तो चौंक गए थे कि इतना चना वो ओवरफ्लो होकर के निकल जाता। आप भी देखे होंगे आपके किचन में, आपके घर में मम्मी जब चना या फिर मटर दानादार कुछ भी भिगाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दानादार जितने सीड्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करके वो एक्सप्लोर हो जाते हैं, साइज में बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाने के कारण जिस पात्र में, जिस कटोरी में, जिस जगह पर उसको भिगाया जाता है उससे वो ओवरफ्लो होकर के निकलने लगते हैं। तो
कहीं कहीं हमारा अंदाज़ा भी नहीं होता है कि हम कितना कल सब्ज़ी बनाएंगे चना का या फिर मटर का, उस हिसाब से भिगोना। हमको जब सूखी हुई चना या फिर सूखी हुई मटर को देखते हैं तो लगता है कि ये दैट इज़ नॉट इनफ फॉर मेकिंग ए फूड आइटम, ए करी, बट when it in water, then it absorb water and becomes large size, then it overflowing from the bowl and from the container. सो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम चना या फिर मटर भिगाते हैं तो वो पानी को ऑब्जर्व करके वो फूल जाएंगे, वो बड़े बड़े हो जाएंगे और ओवरफ्लो हो जाएंगे। तो यही हुआ था। उनकी मम्मी ने बोला ज़्यादा भिगो दिए थे, चलो कोई बात नहीं, एनीवे इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम। उनकी मम्मी क्या बोली कि इसको आधा बनाएंगे और लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, आधा बाकी आधा को क्या करेंगे, टू स्प्राउट। स्प्राउट मीन्स उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ देंगे, दैट मीन्स जर्मिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आई कैन सेंड दिस टू योर आंटी, और वो स्प्राउट वाला चना जो है आंटी को भेजा जाएगा। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, और ये हम जानते हैं, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि चना जो है भीगा हुआ चना से भी बेटर होता है जो स्प्राउट चना होता है, जो इसमें जो अंकुरित हो जाता है। मदर सेड सी टाइड हाफ ऑफ सॉफ्ट चना इन ए वेट क्लॉथ, वही चना को अगर सूखा कॉटन के कपड़ों में लपेट करके रख दिया जाता है, एंड हंग देम आफ्टर स्प्राउट, जब तक वो अंकुरित नहीं होता तब तक उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो अंकुरित हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, स्प्राउट हो जाता है। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर दिस डे। in this introduction, I think, I hope you understand the topic, what is the topic and what we will know, what we are going to know in this chapter. So I suggest you also try to soak the chana, and you will make the sprout of chana. आप खुद इसको किचन में अपना चना को भिगो करके देख सकते हो, और भीगा हुआ चना को वेट, दैट मीन्स भीगा कॉटन के कपड़ों में लपेट करके रखोगे जब तक ना वो स्प्राउट हो जाता है, और वो आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत ही अच्छा खाना माना जाता है, स्पेशली ब्रेकफास्ट में तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये आप एक्टिविटी के तौर पर कर सकते हैं, और आप करके आप अंकुरित चना का फ़ोटो क्लिक करके आप ग्रुप में भेज सकते हैं। दिस इज़ योर एक्टिविटी फॉर नेक्स्ट डे। So I hope you will do it, and you will send the picture, send the photo clicked by you sprout chana. So let's discuss some points. Here you can see some points. What things are soaked before cooking in your house? Why? What things are soaked before cooking in your house? Why? किस चीज़ को भिगाया जाता है, किसकी मतलब उस तरह से फुलाया जाता है कुकिंग के पहले, और क्यों? What things do you eat after sprouting? क्या क्या चीज़ जो है स्प्राउटिंग अंकुरित करने के बाद हम खाते हैं? How are they sprouted? कैसे उसको स्प्राउट किया जाता है, ये आप एक्टिविटी में आप खुद करके सीख सकते हो। How much time does it take? और अंकुरित होने में, स्प्राउट होने में कितना समय लग जाता है? Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? कभी डॉक्टर या किसी ने, जैसे मैं अभी बोला कि आप ब्रेकफास्ट के तौर पर भीगा हुआ चना या फिर स्प्राउट चना स्पेशली बहुत ही खास करके अच्छा होता है खाने के लिए, सजेस्ट किए हैं कोई, और क्यों किए हैं? तो ऑल दिस पॉइंट्स आर डिस्कस कम क्वेश्चंस आल्सो, एंड आई थिंक आई ऑलरेडी डिस्कस सम पॉइंट्स, and you will try to these points discuss with your parents and your elders, and you will write down the answer against these questions. And if you face some problem, then you can call me and you can contact me with your question in WhatsApp group. I will reply soon. Thank you.